So, hi, my dear students, and today I am discussing class 10 trigonometry. I think from the last 2 days I am just going on explaining you trigonometry, but some of you, some of our students, and some of my friend circles have suggested me, commented me to explain trigonometrical identities. That is exercise 8.4, Roman number 5. In your exercise in CBSE 8.4 Roman number 5, there are 10 trigonometrical identities are there that we have to prove. It's a bit, if you'll make practice, nothing is hard, but most of us have commented me to explain that particular sums. So today I am going to explaining that particular sums trigonometrical identities. So before I go to explain trigonometrical identities, there are certain terms regarding trigonometrical ratios. If we know that, I think it will be easy for us to do the remaining sums. Some trigonometrical basics which we have to know. What are they? Already we have learned that in the previous that there are 6 trigonometrical ratios are there: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Now we will see little bit more. What is that? We know sin theta. Sin theta is nothing but just reverse of cosec theta. Okay? Sin theta is nothing but reverse of cosec theta. Now similarly, what is cosec theta? Is nothing but 1 by sin theta. Okay? Now cos theta. What is cos theta? 1 by sec theta. And what is sec theta? Is equals to 1 by cos theta. Okay? Now what is left? Tan theta. What is tan theta? 1 by cot theta. And similarly, what is cot theta? 1 by tan theta. Okay. Now, one more. Tan theta is always, it's very important, sin theta by cos theta. Always remember, tan theta is sin theta by cos theta. And similarly, cot theta will be just reverse of this. Sin by cos means cos by sin. Cos theta by sin theta. Okay. So, I think it's very easy for you. Now, another 3 formulas are there that also we will do, so that it will be helpful for us to do that sums. Okay. Now, what are the another 3? You just pause the video and copy it, and we will see the further. Further, cosec square theta minus cot square theta is always 1. Remember this. Okay. Now with this we can derive 2 formulas. 2 formulas what? Cosec square theta is equals to, we will write 1. If minus cot square theta, if we will put here, it will become plus cot theta. So that is also one value we got, cosec square theta. Similarly, cot theta, if cot theta is removed here and 1 will come here, so cosec theta minus 1, cosec square theta minus 1, this is 1. Okay, so with this we have derived 2. Now one more important formula, very important formula. Just remember this. What is that important formula? Remember, sin square theta plus cos square theta always 1. Remember this. We can prove later, if we will have time, we can prove that how this minus this is 1. We can prove. So here also we can prove with the formula P by H, B by H, like that. Now, sin square theta plus cos square theta is 1, always 1. Remember, it's very important formula. With this we can derive 2. What is sin square theta?
Sine square theta is equals to 1 plus will go there minus cos square theta, isn't it? Similarly, we can make for cos square theta also 1 minus sine square theta. Okay, so these are the two. We have one more formula we can do. Okay, we can do one more formula. Sec square theta, sec square theta minus tan square theta. Remember, this is also 1. So with this also we can derive two formulas. Okay, sec square theta is equals to 1. It will go there plus tan square theta. And similarly, tan square theta is equals to sec square theta minus 1. So copy this one. It's enough. I think with this, it's enough for us to do exercise 8.4 all the identities, and remaining some formulas are there which have been learned from the 7th class, 8th class. A plus b whole square and a square minus b square, a cube minus b cube. So these are the formulas. Even though if that any comes in between the sum while doing, I will explain you. Yes, I will remind you, not explain you. So okay, so copy this. Now we will go for exercise. All the 10 sums one after one we will do. You just patiently try to listen every sums, okay, and try to keep your copy and note it down also. Now copy it. We will see 8.4 question number 1. This is Roman number 1 का question number 1. Cosec theta minus cot theta का whole square equals to this. Means in all we have to solve this side in such a way that the answer should come this. आंसर ये आना चाहिए. ओके, तो हमारे पास प्रोसेस क्या बनाने का, LHS क्या था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था. ओके, now how we will do solve we will see. Now recall all the formulas which I have given you earlier to this. कोसेक क्या होता है, किसका उल्टा था, साइन का, तो 1 by साइन. So this we can write 1 by sin theta. Cot क्या था, cot cos by sin theta, isn't it? Cos theta by sin theta इसका स्क्वायर था. ओके, नाउ क्या करेंगे, इनका एलसीएम तो sin थीटा ही रहेगा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर था ना. ये स्क्वायर हम लोग दोनों को बांट देते हैं. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ना हम लास्ट बीच में एक तो फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. तो यहाँ पे लेते हैं ऊपर का एज इट इज, विल राइट हियर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और ये होगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अभी हम जो लिखा है उसमें से आप चेक कर सकते हैं. ओके, अब ये हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं. 1 प्लस 1 2 बार लिख लेते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ ये सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा एक जगह और 1 माइनस कॉस थीटा एक जगह. ओके, सो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाता है. कटने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा by 1 plus cos theta. See, we got the answer. LHS वाला मिल गया हमको, is equals to RHS. proved हो गया, PROVED proved, isn't it? 1 minus cos theta. So simple. हमारे पास जितने अलजेब्री पढ़े थे, अलजेब्रा के जितने भी टेक्निक्स पढ़े थे, थोड़ा डालिए, बना दीजिए आंसर. ओके, now copy it, go for second question.
So okay guys, this is question number 2. Cos A by 1 plus sin A, 1 plus sin A by cos A, इसको हमको ऐसे कुछ करो कि ये आना चाहिए, isn't it? अब हम कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट LHS. LHS क्या है हमारा? cos A by 1 plus sin A, फिर 1 plus sin A by cos A, जो था उसको हम लिख देंगे. ओके अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम वही होगा, एलसीएम निकालेंगे. cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए. ठीक है, हमारा सिंपल एलसीएम प्रोसेस. 1 प्लस साइन ए तो था, cos A नहीं था, इसलिए cos A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा. प्लस cos A था तो यही चाहिए, तो इससे कब टोटल पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सब एज इट इज़ लिखेंगे. ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में था, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तब हम क्या करेंगे? इसको कॉस स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 साइन ए होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए तो 1 था, बी स्क्वायर. अब नीचे क्या था? एज इट इज़ जो उसी को लिखते थे हम लोग, कॉस ए 1 प्लस साइन ए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको? देखिए कॉस से साइन, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है? हम लोग लिख लेते हैं पहले. साइन स्क्वायर ए, आई टोल्ड यू प्रीवियसली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस कॉस स्क्वायर ए, बचा क्या? प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या था? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए. ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. वी नो फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इज 1 ऑलवेज. देखिएगा कई बार आएगा कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1, तो टोटल, ये टोटल का मतलब हुआ 1, और यहाँ रहा 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए. सिंपल, आराम से बनाते जाइए. 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. आई एम जस्ट डूइंग इट. 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या था? कॉस ए, फिर 1 प्लस साइन ए. ठीक है, समझ में आ रहा? अब क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन है 2 बाहर लेकर आ जाएंगे. 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2 1 जा 2 से साइन ए को करेंगे. ठीक है, 2 1 जा 2 को इससे करने से ये आ रहा. नीचे वैसे लिख देते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए. इसी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या? 2 इंटू 1 बाई कॉस ए. हम ऐसा लिख सकते हैं इसको. पहले बोला था कॉस किसका उल्टा था? सेक का उल्टा था, तो 2 इंटू सेक ए, 2 सेक ए. हमको चाहिए था यही, आ गया ना आंसर. ए प्रूव हो गया RHS, इज़न्ट इट? बस सिंपल, जो आता है उसको लगाते जाइए, कुछ ना कुछ ऐसे करिए कि हमको ये आंसर, बट तरीके से, ऐसा नहीं कि आप लोग जो चाहे कर देंगे. ओके, तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का नंबर 3. दिस इज सम नंबर 3. क्या करते हैं? जहाँ जहाँ कॉट है उसको टैन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो पहला जो एज इट इज था, टैन थीटा वी विल राइट, ये होगा 1 बाई टैन थीटा. ठीक है, प्लस इसको भी हम करते हैं 1 बाई टैन थीटा, और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस टैन थीटा. ओके, इसको लिखने के बाद ये सेकंड स्टेप होगा.
इसको 1 करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। tan थीटा तो रहेगा ऊपर में, tan थीटा, और इसका एलसीएम होगा tan थीटा। अब ये क्या होगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे बाद में, अभी नहीं। 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। देखिए इसमें कुछ कुछ रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रूल फिजिक्स में भी लगता है। तब ये तो वैसे ही रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। बचा क्या, tan थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी 1 tan थीटा। ना देखो यहाँ पर एक चीज, ये tan थीटा माइनस 1 है और यह 1 माइनस tan थीटा है, यानी 1 का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, इसको अगर घुमाते हैं, क्योंकि हमको सेम चाहिए, यहाँ अगर वो है तो यहाँ की हम घुमा देते हैं, तो सिंपली हम यहाँ का साइन को हम प्लस था तो माइनस कर देंगे। रिमेंबर, अच्छे से समझिएगा, tan थीटा माइनस 1। सी हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया, वैल्यू क्या था, ये माइनस tan था, तो इससे करेंगे तो माइनस tan थीटा आ गया। प्लस 1 था तो माइनस माइनस प्लस 1, वैल्यू वी हैव नॉट चेंज बट वी हैव मेड फॉर अवर कन्वीनियंट। हमने इसको ऐसा किया, इसके किसी भी वैल्यू को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको याद रखिएगा ना। अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा tan थीटा माइनस 1, ये एलसीएम होगा। नहीं, ये tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 था, tan थीटा चाहिए था, उस tan थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा तो था ही, इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैसे ही रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहीं लिख लेते हैं, क्या यहीं पे लिख लेते हैं, हम लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, एक तो a माइनस बी हमको लिखेंगे ही, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, उसे को यहाँ अपनाएंगे, a हो गया tan थीटा, b हो गया 1। तो पहले क्या था, a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस 1, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आया क्या हमारे पास, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब हमारे नीचे क्या था हमारा, ये था tan थीटा माइनस 1। ओके, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ये बाई tan थीटा रह गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा लिख लेते हैं आराम से, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा, ये थीटा है, प्लस tan थीटा बाई tan थीटा, फिर प्लस 1 बाई tan थीटा। अब यहाँ पे 2 tan थीटा था, कट जाएगा तो बचा क्या, एक ही tan थीटा बचा है, यहाँ पे दोनों कट गया तो 1 बचा है। ये हुआ आपका 1 बाई tan, किसका उल्टा था, किसका उल्टा था, cot थीटा का उल्टा था। ठीक है, अब हमको इतना लाना है, कहाँ है, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दिया है, वी गॉट दिस। अब देखिए हमको इतना लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ 1 था,
इज इक्वल्स टू 1, बचा क्या हमारा कॉट tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही बचा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इस वन को एज इट इज रहने देते हैं हम लोग, कुछ करेंगे नहीं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा होता है एलसीएम। ठीक है, अब क्या होगा कॉस थीटा तो था, साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक से समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या होगा 1 प्लस ये टोटल हो गया 1, क्या हो गया 1, तो ऊपर 1 हो गया, तो हम नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, हम इसको रब करते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा का उल्टा किसका उल्टा था कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉस का क्या होता है सेक थीटा, वही चाहिए था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। प्रूव्ड RHS हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा घुमाना है, करना कुछ भी हमको ले लेके तो लाना ही, यही आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, मजा लीजिए, बनाइए, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा तो आप अपने से बनाते रहेंगे तो यू विल एंजॉय इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग 4 चलते हैं। नेक्स्ट सम इज दिस, दोनों को सेपरेट प्रूफ करके हमको इसको ये होता है इसको ये होता हमको प्रूफ करना है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी करें चाहे ऐसे भी करें। पहले इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए का पता है क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, बार बार बोला, ये फॉर्मूला कितने बार आ रहा है हमको। अगेन दिस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, एक बार ए बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए हट गया, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस ए बचा है। ठीक है, अब इसी से ये कैसे आता है हम इसको प्रूफ करते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए को हम लोग क्या करते हैं 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1 प्लस कॉस होता है 1 बाई सेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक, जो फॉर्मूलाज में दिए उसी में हम लोग, कहीं और बाहर नहीं जा रहे हैं। फिर इसको हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा हमारे पास सेक ए ही आएगा, ऊपर क्या बचा है सेक ए प्लस 1। ठीक है, वही एक 1 प्लस सेक ए प्लस 1, दोनों में कोई ये प्लस करेंगे तो कोई हर्जा नहीं, आ गया हमारे पास RHS, इजंट इट। देयर में भी 2-3 तरीके हो सकते हैं, बट कोई एक तरीका वो अपने पकड़ के उसी को चलिए। सो दिस इज इन ऑल। ठीक है, कॉपी कर क्या करते हैं हम लोग इस सम को, इसको दोनों को साइन ए से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, साइन ए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन ए। ठीक है, तब ये क्या होगा कॉस ए सॉरी माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, और ये भी होगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, साइन कॉस बाय साइन किसका फॉर्मूला है
कॉट का फॉर्मूला है, कॉट ए। साइन बाय साइन कट गया 1, 1 बाय साइन किसका है, 1 बाय साइन कोसेक, कोसेक ए। इसको भी देखते हैं हम लोग, कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हमारे पास ये सिंबल आया है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बुक में एक आपको हिंट दिया है, यूज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे दे रहे हैं आइडेंटिटी दिया है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ एक जगह लिख दे रहे हैं, माइनस 1 के जगह हम इसको लिखेंगे, ब्रैकेट देके कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कॉट स्क्वायर को ये बुक में दिया आपका ना, ये बुक में दिया, तो इसको यहाँ ला देते हैं, तो इस 1 के जगह हमने लिख दिया, और रिमेनिंग नीचे कैसा था वैसे ही लिख दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, जैसा था वैसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म में जाएंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब वैसे ही चल रहा, थोड़ा थोड़ा एक एक तो चेंज होते जा रहा। और नीचे का क्या था, हम उसको वैसे के वैसे लिख देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए, इन दोनों में जो कॉमन है हम कॉमन बाहर निकाल देंगे, हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलता है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन निकला, तो अंदर क्या रह जाएगा 1, ये रह गया माइनस, ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको लिखना है, आगे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ले दे करके कोसेक ए प्लस कॉट ए। यानी अगर हम ब्रैकेट देते, ब्रैकेट को तोड़ देते, यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब नीचे बच्चा क्या हमारे पास, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आपको ये दोनों वैल्यू एक नहीं लग रहा है, हाँ, कॉट ए प्लस था तो प्लस कॉट ए है, कोसेक ए माइनस था, माइनस था, प्लस 1 था। इसको अगर हम ठीक से सजा भी लेते तो ऐसे ही आएगा, वैल्यूज तो वही है। तो इन ऑल ये और ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, वही कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बच गया। आर इट इज सिंपल प्रूफ, इजंट इट। थोड़ा सा लगता है कि इधर इधर है, बट मेथड तो वही है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे ना। तो इसको कॉपी करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सम नंबर 6। सो ओके, दिस इज रोमन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, जब भी ये रूट में रहेगा तो इसको हटाना है डिनोमिनेटर को, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। याद आ रहा है आपको क्लास 9 में, तो इसी को हम रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करते हैं। पहले इसको उतार लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, उतार क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर जो कर रहे थे इसी को करेंगे। क्या कर रहे थे, रूल क्या था, अगर ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसको रूट में ही रखते हैं हम लोग। रूट में रख करके क्या करेंगे, ये होगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको अंडर रख करके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करते हैं। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। कितने बार देखिए यही फॉर्मूला आ रहा था, बाई कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, रूट टूट जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, रूट टूट गया तो बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए बच गया और नीचे में कॉस ए बच गया, ठीक है। हमको लाना क्या था, सेक के टन नहीं था। यहाँ दिख रहा है आपको सेक के टन ए, कहीं दिख रहा है आप लोग को? हाँ, दिखाते हैं आपको कैसे दिख रहा है। इसको 1 लिख के बाई कॉस थी, कॉस ए कर दें प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब दिख रहा है आपको? अब तो दिखेगा, क्योंकि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन। हो गया ना RHS, यही ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, कॉपी इट। और 3 सम्स है, कर लेते हैं, 3-4 सम्स है कर लेते हैं, क्योंकि लेंदी एक्सरसाइज है तो क्या हुआ, बट ऑल वी आर डूइंग इन ए वन सिंगल सीरीज। ओके, इसको कॉपी करो, यू विल सी देन। ओके गाइस, दिस इज सम नंबर 7। ये सब को ऐसे निचोड़ दो कि टैन थीटा ही बचे, जबकि यहाँ टैन थीटा दिख नहीं रहा। दिख रहा आपको? इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन है, इजंट इट? तो बचा क्या, 1 माइनस यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे देखते हैं कॉमन क्या है, कॉस थीटा कॉमन है। बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा आ गया तो y1, ठीक है। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। यहीं पे रख लेते हैं हम लोग, टैन थीटा पहले लिख लेते हैं, कर सकते हैं लास्ट में। अब इसका मतलब ये तो टैन थीटा तो आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा हमको काटना है, कैसे काटना है, चाकू से काट देते हैं, ठीक है। चलिए नहीं, हम लोग अपना प्रोसेस देखते हैं कैसे कटता है, ठीक है। इसको अलग रख लेते हैं, इसको हम लोग अलग लिखते हैं इसको, क्योंकि काटना है ना। तो इसमें आता है आपका, ऊपर में लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, लिख ही लेते हैं, लिख दीजिए। यहाँ देखिए फिर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। बचा क्या, -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं टैन थीटा, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और +1 तो -1 तो बाहर था ही, कितना करना पड़ रहा हमको काटने के लिए, देखिए। फिर ये टैन थीटा लिख देते, हमको रखना तो खाली टैन थीटा, तो यही आ गया आंसर। अब इसको जो एक्स्ट्रा, इसको कैसे हटाएं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इनमें कॉमन, इन दोनों में क्या है, हम करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। नहीं कॉमन ही निकालते हैं, काम करते हैं। 2 को -1 करने से क्या होगा, 2 माइनस 1 हुआ, बच गया क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कर दिया, ला दिए ना, कट गया, बचा क्या, टैन थीटा इक्वल्स टू RHS। देखिए यही आंसर आ गया था, बट इस एक्स्ट्रा को कितना हम लोग पापड़ बेले उसको हटाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मोर सम। देखिए
ये तो और भयंकर सम लग रहा। 7 हमको लाना है, या कोई नंबर हमको नहीं दिख रहा है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है नहीं, हमको 7 ले आना है। tan स्क्वायर cot स्क्वायर तो खर ला देंगे, अब 7 नंबर हम कहाँ से लाएंगे भाई? लाना तो है। चलिए हम लोग उसको खोदते हैं, निकालते हैं कैसे आता है। खोदे हम, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आराम से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये भी हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई हमको तो यहाँ 2 और 2 4 मिल गए हैं, है ना। अब हमको ये कैसे, अभी खैर ये गोटा नंबर भी नहीं, इसके साथ ये इंटू 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 है। तब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, और थोड़ा अंदर खोद लें। टू साइन ए, कोसेक क्या होता है? 1/sin ए होता है ना, होता है कि नहीं? क्योंकि ये कट जाएगा, खाली गोटा 2 रह गया। ये भी वैसे ही cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए sec ए क्या होगा? 1/cos ए होगा। चलिए ये और ये कट के हमारे पास 4 आ गया। चलिए जैसे तैसे खोद खाद के हमने यहाँ पे 2 और वहाँ पर भी 2 सब उतार रहे हैं हम लोग। खाली उतारने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। चलिए 2 + 2 4 आ गए भाई, और हमको 3 खोद खाद के ढूंढ ढांड के निकालना है, तब जाके 7 बनेगा। 3 कैसे निकालते देखिए, आपको तो यहाँ 1 दिख जा रहा होगा। देखिए 1 कैसे दिख रहा पता है आपको? sin स्क्वायर ए, यहाँ से इसको लेकर आ जाते हैं, प्लस cos स्क्वायर ए, यहाँ 1 दिख रहा है ना आपको, है। फिर बचा क्या आपका? cosec स्क्वायर ए, और यहाँ पे बचा है प्लस sec स्क्वायर ए। 2 और 2 को जोड़ देते हैं, 4 हो गया। अब हमारे पास इनका हो गया 5। फिर इसको लिख दें हम लोग। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे को आ रहा है। अब क्या होगा? 5 आ गया भाई, 5 आ गया है ना। इसको जोड़ दे 5। अब हमको इसमें से 1 निकालना है, इसमें से 1 निकालना है। कैसे 1 निकालेंगे? थोड़ा सा आप सोच। हाँ देखिए, कॉसेक क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर ए होता है ना, और ये भी होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तब आ गया, ब्रैकेट नहीं भी देगा तो क्या करेंगे? 5 6 7 आ गया। cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, वहाँ पे क्या था? पहले tan स्क्वायर था तो tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, वही ना हमको प्रूव करना था। RHS हो गया। देखिए कोई नंबर था, जैसे कैसे हमने 7 नंबर लाके प्रूफ कर दिया। यही है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए अभी हम लोग सम नंबर 9 बना लेते हैं, ठीक है। सो के दिस इज सम नंबर 9। अब क्या करें? इसको LHS लिख देते हैं। कोसेक ए क्या होता है? 1/sin होता है। इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 1/sin A - sin A,
ठीक है, नीचे कुछ 1 दे देते हैं। ठीक इसी तरह इसी को भी दिमाग लगाओ, ये भी होता है ना 1/cos A माइनस cos A/1। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ऑब्वियसली हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, साइन ए होगा, ऊपर साइन ए था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ ना। अच्छा, फिर यहाँ क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, हटा करके इनटू कर देते हैं। इसका भी एलसीएम हुआ कॉस ए। ठीक है, ये तो ऊपर था ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, इंटू था, यहाँ पे 2 साइन ए था, एक साइन ए कट गया तो एक ही साइन ए बचा, कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 कॉस एक था, ये और ये कट गया तो एक कॉस ए बच गया। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। लेकिन हमको तो लाना 1 भाई, इसको रैशनल नंबर में लाना, ये तो रैशनल नंबर में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर में लाने के लिए हम 1 दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं हम लोग। कैसे 1 दे रहे हैं, 1 दे सकते हैं क्योंकि हम कुछ भी दें लेकिन हम इसके वैल्यूज़ को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब 1 दे देते तो फिर हम चुप क्यों बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। साइन ए कॉस ए, 1 का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। गुड। अब हमको प्रूफ क्या करना है, 1/1, यहाँ तो 1 है नहीं। अब ऊपर में 1 अगर आना है तो हमको क्या करना है, इसी को इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बनाता है ना, इसको कहते हैं कि चालाकी से चीटिंग करना। डिवाइड बोथ साइड्स, किससे, बोथ साइड्स साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 लाना है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ बनाते हैं इसको, साइन ए कॉस ए, उसको हम साइन ए कॉस ए से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब एक जगह किए तो इसको क्यों छोड़ेंगे। तो ये भी हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये इंटू है ना, इंटू कॉस ए। अब तो भाई ये कट गया। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए, ऊपर तो 1 था ही, बाई ऊपर में 1 ही था, तभी क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसको बाद में भी करते हैं, बस दिखते हैं। फिर ये हुआ प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर से साइन ए कॉस ए। अब यहाँ 2 साइन है, ये साइन ए कट गया तो बच गया क्या आपका, साइन ए बाई कॉस ए बच गया। यहाँ पर भी आपका कॉस कट गया तो क्या बच गया, कॉस ए बाई साइन ए बच गया। ठीक है, लेकिन ये जो 1 था, ऊपर से 1 था, यहाँ पर भी 1 था। ठीक है, ऊपर का 1 को ऊपर का 1 ही रहेंगे। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, जैसे तैसे ला दिए कि नहीं। प्लस ये क्या होता है, कॉट ए, रूट। ओके, ताली बजाओ। चलिए, ये हमारा 9 हो गया। अब एक सम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, isn't it? लास्ट वी हैव रीच्ड द लास्ट सम। इसको भी प्रूव करेंगे तो ये आना है, इसको भी प्रूव करेंगे तो ये आना है। ठीक है,
तब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है कि नहीं। और ये क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, cos का उल्टा क्या होता है, cos सॉरी sec होता है 1 बाई cos स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 बाई sin स्क्वायर ए। फिर इसको घुमा देंगे 1 बाई cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए बाई 1, कट गया तो बचा क्या, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। हमने बोला कि sin बाई cos tan होता है, तो दोनों का स्क्वायर भी tan स्क्वायर ही होगा, tan स्क्वायर ए प्रूव हो गया। एक से हमने प्रूव किया है, अब दूसरे से भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा मिडिल टर्म, क्या था लिख लेते हैं 1 माइनस tan ए या 1 माइनस cot ए, इसका भी स्क्वायर था। अब हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ इसको लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे 1 बाई tan ए, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर का 1 माइनस tan ए तो रहेगा ही, नीचे क्या होगा tan ए माइनस 1 बाई tan ए हो जाएगा, इसका पूरा का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, घुमा देने से tan ए ऊपर आ जाएगा, tan ए ब्रैकेट में आएगा। अब हमको यहाँ पे देखिए tan ए माइनस 1 था या 1 माइनस tan था, इसको घुमाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस साइन दे देंगे, तब ये क्या हो जाएगा tan ए माइनस 1 बाई tan ए माइनस 1, ये पूरा का स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए 1 पॉजिटिव था, माइनस माइनस प्लस 1, tan ए नेगेटिव था, इससे करते ये हो गया। अब ये कट गया, अब बचा क्या, यहाँ देखते हैं माइनस tan ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो कुल ले दे करके क्या आया, tan स्क्वायर ए ही आया, ये भी प्रूव हो गया। सो इन ऑल दिस इज द वे वी हैव प्रूव्ड द सम एट लास्ट। कंप्लीट एक्सरसाइज आइडेंटिटीज किए हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा सब कुछ आ जाएगा। ओके, सो विल सी यू लेटर with a new subject with new knowledge. Thank you.